45 मिनट्स तक खींचेगा, उससे ओके ज्यादा नहीं। ठीक। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है क्लास अटेंड क्लास जी में? जी सर जी। All right, class. So we have the last topic. We have chi-square. ठीक है। chi-square पे थ्योरी भी आएगी और न्यूमेरिकल भी आएगा। So अभी तक हमने जो टेस्ट किए, टी टेस्ट, अनोवा, वो बेसिकली आपके, so every test has some assumptions, ठीक है। आप वो टेस्ट किसी कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस में ही लगा सकते हो। टी टेस्ट के कुछ अलग assumptions होते हैं, अनोवा के अलग assumptions होते हैं, जो आपकी एसएलएम में मेंशन है। सो प्लीज गो थ्रू देम, ठीक है। chi-square is the only non-parametric test जो बहुत commonly यूज होता है। I think I'll provide you all the access to turn on your mics if you have any question. Great. Can anyone turn on their mic and just let me know कि मतलब आप लोग कर पा रहे हो या नहीं? No. Wait. Wait, wait, wait. Uh, sir, if you can enable their mics. सबके mics आपने disable किए हुए, I think. या तो उसका access मेरे को दे दो. Okay, let's wait. If you have any doubts, you can write in the chat box. So chi-square is the only non-parametric test that we most commonly use in psychology. आप लोगों ने वेरिएबल्स पढ़े हैं, राइट? और scales of measurement पढ़े होंगे second semester में. And we say that whenever we are using any parametric test, हम continuous scale पे हमारा variable होना चाहिए. So continuous scale है आपके जो Likert scales होते हैं, strongly disagree, disagree, neutral, agree, strongly agree, या फिर क्वेश्चंस विच हैव रेटिंग स्केल्स 0 to 5 की रेटिंग दो, ये आपके कंटिन्यूअस स्केल्स होते हैं. सो इफ योर डेटा इज ऑन अ कंटिन्यूअस स्केल, you can go for parametric tests like t-test, ANOVA. But if your data, whatever variable that you are measuring, जो भी variable आप measure कर रहे हो, अगर वो आपका continuous scale पे नहीं है, वो categorical scale पे है, then you go for chi-square. Now, what is a categorical scale? Questions which have yes no answers. Are you feeling upset? Yes or no. Or questions which have true or false like situation. तो जहाँ पे दो कैटेगरीज बनती हैं either और वाली, या तो A होगा या B होगा, that is a categorical data. या either male or female. Either you like something or you don't like something. So when we have discrete categories, that type of data is called categorical data. और chi-square हमें categorical data को analyze करने में help करता है, ठीक है? इसकी assumptions क्या है? It is also called the goodness of fit test. उसको goodness of fit model क्यों बोला जाता है? All this theory it is already mentioned in your SLM. Please go through it. And I think we have already done a lot of discussion on this before as well. chi-square के हम लोग न्यूमेरिकल नहीं कर पाए थे because we ran out of classes. So आज हम chi-square के दो types of numerical समझेंगे, ठीक है? I'll share my screen again. Wait, I'll ask sir to give you the access to the mic.
ओके, सो काई स्क्वायर का एक ही फॉर्मूला है, एक ही टेबल है, और कुछ नहीं करना, बस उसकी देर आर टू डिफरेंट वेज विद विच वी कैलकुलेट काई स्क्वायर. देर आर टू डिफरेंट केसेस. I'll share my screen and we'll see if ठीक है. So there are two cases wherein we use chi-square. There is case A when you have when you want to compare these two things, observed frequency versus expected frequency. अब इसका लॉजिक क्या है? इसका लॉजिक ये है that I'll give you an example. You are a researcher and you want to see that how many people prefer normal Oreo जो बिस्किट आते हैं, and how many people prefer the mint Oreo. ठीक है, तो दो फ्लेवर्स हैं आपके. There are two flavors, mint Oreo versus classic Oreo. ठीक है, ये दो फ्लेवर्स आपने देखे हैं. सो यू बेसिकली यू वांट टू लॉन्च अ न्यू फ्लेवर एंड यू वांट टू सी कि क्या लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं. लेट्स से ऑन अ सैंपल ऑफ 100 आपने ये दो फ्लेवर्स 100 लोगों को दिए एंड यू एक्सपेक्टेड that only, let's say, 25 people will prefer mint Oreo and rest 75 will prefer the classic Oreo. आपने उनको टेस्ट कराया, you ask them to rate the biscuits, the flavors, and what you observed. आपने क्या देखा कि आपने देखा कि 100 में से 40 लोगों को मिंट ओरियो पसंद आया और रेस्ट 60 लाइक क्लासिक ओरियो. सो व्हेन यू हैव दिस काइंड ऑफ अ सिचुएशन जहां पे आपको डिफरेंशिएट करना है या ये समझना है कि आपने जो एक्सपेक्ट किया क्या वो एक्चुअल वैल्यू से मिलता है या नहीं. नाउ इफ यू सी 40 और 25 के बीच में सिर्फ 15 पॉइंट्स का डिफरेंस है, राइट? बट क्या ये 15 पॉइंट्स स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है या नहीं? ये जो 15 लोगों का डिफरेंस आया है, क्या ये स्टैटिस्टिक्स की लैंग्वेज में या मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में हमारे लिए रेलेवेंट है या सिग्निफिकेंट है या नहीं? सो दिस इज डन बाय काई स्क्वायर एंड दिस इज द फर्स्ट सिनेरियो. दिस इज द केस 1 जहां पे आप काई स्क्वायर यूज कर सकते हैं व्हेन यू वांट टू सी द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज. ठीक है, यूजुअली हम ये यूज करते हैं सर्वेज में. सर्वेज में यूज होता है प्री सर्वे में भी यूज होता है या प्री लॉन्च में यूज होता है. इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं. आपको कोई नया ब्रांड लॉन्च करना है या कोई नया फ्लेवर किसी आइसक्रीम का लॉन्च करना है या कोई नई स्कीम आप लाना यस, शशांक काई स्क्वायर में थ्योरी भी आएगी आपके एसएलएम में. जितनी थ्योरी मेंशन्ड है, assumptions of chi-square, applications of chi-square and chi-square as goodness of fit, ये तीनों चीजें आपको पढ़नी है. आई एम राइटिंग इट डाउन इन द चैट बॉक्स फॉर ऑल ऑफ यू. अभी द फोकस इज ऑन डूइंग द न्यूमेरिकल्स फॉर chi-square बिकॉज वो हमने क्लास में भी नहीं किए हैं.
chi-square theory, assumptions, applications, and goodness of fit model. ठीक है. So the first scenario is when you want to just simply compare आपकी observed और expected frequency में क्या था. Any doubts? If no doubts, then give me a thumbs up. I think आप लोग अभी भी mic on नहीं कर पा रहे हो अपना शायद. मैम ये पीछे से सेटिंग बंद है. यदि Sorry. आप अगर किसी को अलाउ करना चाहेंगे तो उसमें 3 डॉट्स हैं. जो बच्चा हैंड रेज करेगा उसको आप अलाउ कर सकते हैं. ठीक सिंगल. है, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है. Yes, Aditi, you are raising your hand. Wait, let me unmute you. Aditi, you can unmute yourself. Let me just give the access to everybody. मैम मैं सिर्फ माइक चेक कर रही थी. दैट्स इट. अच्छा, ठीक है, ओके. I think आप सभी लोग अब कर सकते होंगे. आई हैव अलाउड इट फॉर एवरीबॉडी. ठीक है, बट जब जरूरी हो तभी यूज करना. मैम टू वे एनोवा में एनोवा की भी क्वेश्चन आ सकते हैं, थ्योरी या नहीं. क्वेश्चन. नो. ओके. थ्योरी पूछी जा सकती है अनोवा पे. जब इन जनरल थ्योरी पूछी जाएगी व्हाट इज अनोवा, देन यू कैन मेंशन कि एक टू वे भी होता है, बट टू वे पे न्यूमेरिकल नहीं आएगा. ओके मैम, थैंक यू. ठीक है. सो द फर्स्ट सिनेरियो इज क्लियर. जब आपको सिर्फ ऑब्जर्व वर्सेस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी देखनी है. अब इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं? आई विल गिव यू अ फॉर्मूला फॉर दिस. chi स्क्वायर का एक ही फॉर्मूला होता है. ठीक है, विच इज तो chi स्क्वायर का सिंबल इज दिस. Observed minus expected. F is frequency. This is the formula for chi square. ठीक है. Observed minus expected frequency. Observed minus expected frequency whole square upon expected frequency. ठीक है. और इसका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला ये होता है. डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इज C minus 1 into R minus 1, where C stands for columns. आप एक टेबल बनाओगे जैसे हमने ये ऊपर टेबल बनाई. ठीक है, तो कॉलम माइनस रोज. कॉलम्स -1, रोज -1. ये और इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करोगे तो दैट बिकम्स योर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. ठीक है, ये पहला सिचुएशन समझ आया कि हम कब का स्क्वायर यूज कर सकते हैं. इसका एक क्वेश्चन करेंगे, देन और क्लैरिटी मिलेगी थोड़ी. क्विकली राइट डाउन दिस क्वेश्चन. मैम एक्सक्यूज मी मैम. हाँ जी. मैम आप डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का एक बार फिर से फॉर्मूला दिखा दोगे, मैंने मिस कर दिया. मैम यस. आप मैम दोबारा से बता सकते हो, लाइक स्टार्टिंग से. Sir, there is this guy called Gaurav Singh. Can you please report this person? Wait, let me do. Guys, give me a minute. Class, give me a minute. Gaurav Singh is not in the meeting yet. How is he able to send us useless links?
ठीक है, एक सेकंड बच्चों। आप लोग डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पूछ रहे थे, हियर इट इज। मैम यस, आप स्टार्टिंग से बता सकती हो एक बार? अच्छा ठीक है, देखो हम काय स्क्वायर डिस्कस कर रहे हैं। काय स्क्वायर के दो, देर आर टू मेजर वेज विद विच वी यूज काय स्क्वायर। पहला सिनेरियो है व्हेन यू वांट टू सी वेदर देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन योर ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी एंड योर एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। इस एग्जांपल से हमने ये समझा था कि आपने दो फ्लेवर्स रिलीज किए ओरियो के, द मिंट ओरियो एंड द क्लासिक ओरियो, एंड यू गेव इट टू 100 पीपल एंड यू वांट टू सी कि कितने लोगों को ये पसंद आएगा, कितने लोगों को ये पसंद आएगा। आपने सर्वे लेने से पहले एक्सपेक्ट किया या अज्यूम किया that out of 100 only 25 people will like Oreo and only 75 will like the classic one, ठीक है। बट जब आपने एक्चुअली ये सर्वे कंडक्ट किया, you found out what you observed in the field that 40 people liked mint Oreo and 60 liked classic Oreo। तो आपने जो एक्सपेक्ट किया था और आपने जो एक्चुअल में ऑब्जर्व किया फील्ड पे, ये दोनों वैल्यूज कितनी डिफरेंट हैं या कितनी सिमिलर है। अब हमें पता है कि डिफरेंस है, 15 पार्टिसिपेंट्स का, 15 लोगों का डिफरेंस है, बट क्या ये डिफरेंस हमारे लिए सिग्निफिकेंट है या नहीं, हम ये जज करने के लिए काई स्क्वायर यूज करते हैं, ठीक है। सो दिस वाज द फर्स्ट सिनेरियो। नाउ दिस इज द फॉर्मूला फॉर काई स्क्वायर, FO minus FE whole square upon FE, where FO stands for observed frequency, FO stands for observed frequency and FT stands for expected frequency, ठीक है। और ये इसका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला है, C-1 इंटू R-1। C इज फॉर कॉलम्स, R इज फॉर रोज। ये क्वेश्चन आप लोग करेंगे कैसे? आई गिव यू अ क्वेश्चन, आप लोग उसको अटेम्प्ट करो, देन मे बी यू विल गेट मोर क्लैरिटी। हियर इज द क्वेश्चन फॉर यू। ये दिख रहा है? अब इसमें आप देखो, ये इन्होंने सिर्फ एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी दी है, जो इन्होंने दीज आर योर ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज, जो इन्होंने फील्ड वर्क के बाद, डेटा कलेक्शन के बाद ऑब्टेन किया। इसमें एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज तो नहीं गिवन है। तो हाउ आर यू गोइंग टू गो अबाउट दिस क्वेश्चन? पहले तो इनको सम कर लो, A प्लस B प्लस C, यानी कि आपका सैंपल साइज हो गया ये। पहले n निकाल लेंगे, n इज A प्लस B प्लस C, 20 प्लस 39 प्लस 25, कितना आ रहा है बताओ? 84। 84। मैम इसमें जो A, B एंड C में जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है वो हमारी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी या ऑब्जर्व्ड है? वो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है। क्वेश्चन Okay. पढ़ लो एक बार पहले ऊपर। सी, इन अ ग्रोसरी स्टोर, customers who pass by are asked to sample 3 cheese spreads and declare their preference, ठीक है। अब इसमें देखो बहुत क्लियरली लिखा है कि 3 कैटेगरीज हैं, और अगर आप कोई चीज प्रेफर कर रहे हो, किसी चीज पे अपना ओपिनियन दे रहे हो, तो वो किसी एक पर्टिकुलर चीज पे ही होगा। इधर यू लाइक A और यू लाइक B और यू लाइक C, राइट। तो ये जो 20 लोग हैं, these are independent of these 39 people, these 39 people are independent of these 25 people, ठीक है। तो जो लोगों की रेटिंग्स थी कि उनको A चीज पसंद है, B पसंद है या C पसंद है, वो उन्होंने फ्रीक्वेंसीज की टर्म्स में दिया है। सो 20 people opted for A, 39 जो people भी है लेना तो पड़ेगा ना? क्या? सॉरी मैम, सॉरी।
बोलो बोलो। Ma'am, No, these ma'am, are वो observed mistake frequencies. या mute like unmute हो गया था, sorry. ओके, Ma'am, these are observed frequencies. मैं समझा रही हूँ, क्वेश्चन पढ़ो एक बार। These are observed frequencies, right? But observe क्यों है? Observed frequencies क्यों है? क्योंकि इन्होंने हमें क्लियरली बोला हुआ है कि ये हमारे पास चॉइसेस आई हैं लोगों की। These are the frequencies of choices that we have found out. तो जो आपके पास निकल के आता है वो आपका ऑब्जर्व होता है, ठीक है? मैम कोई चैट पे बहुत वल्गर लिंक्स भेज रहा मैम है। यस प्लीज आप रिपोर्ट कर दीजिए, रिमूव भी कर दीजिए। सर एक स्टूडेंट तो नहीं है शायद, ये हमारा गौरव सिंह नाम का कोई है। ही हैज बीन सेंडिंग सम यूजलेस स्टफ ऑन द चैट ग्रुप। आप एक बार प्लीज उसको देख लो। आई थिंक ये मैंने इसको रिमूव किया था पहले, बट ये फिर कैसे अलाउ हो रहा है मीटिंग में बार बार। एक बार देखो सर आप इस चीज को। हाँ जी, ठीक ठीक है सर। आप कर दीजिए। राइट, सो वेयर वर वी? Harshdeep, you have a question? You were raising your hand. हाँ हर्षदीप, बोलो बोलो। I think I've given you the access for unmuting yourself. He is not able to open mic. तो टाइप कर दो यार फिर, क्योंकि एक्सेस सबके पास है। Everybody is able to unmute themselves. So till the time he is asking a question, yes, let's come back to this particular question. हमने ये हमारी expected frequency, observed frequencies हैं, ठीक है? मैम फॉर्मूला ऑफ x2 में सिग्मा भी आएगा ना? सिग्मा सिग्मा कहाँ से आया? मैम वो शायद कहना चाह रहे काई स्क्वायर भी आएगा। काय यार, काय वो सिग्मा अलग फॉर्मूला होता है भाई। काय स्क्वायर का सिंबल इज दिस। फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन में आपको ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज दी हुई है, एक्सपेक्टेड नहीं गिवन है, आपको एक्सपेक्टेड भी चाहिए। तो सबसे आसान तरीका, आप कैसे अज्यूम करते हो कोई चीज? अगर आपको आपके पास एक केक है और आपको वो केक डिवाइड करना है, आप सिंपली उसको 4 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर दोगे या 5 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर दोगे। दैट इज अ वेरी कॉमन सेंस दैट वी डू, है ना? ऐसे ही जब हमारे पास ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज गिवन है, एक्सपेक्टेड नहीं गिवन कि हम क्या एक्सपेक्ट करें, वी डोंट नो अबाउट इट, देन वी व्हाट वी सिंपली डू इज, जो भी हमारा टोटल सैंपल साइज है 84 जो निकल के आ रहा है, इस टोटल सैंपल साइज को हम 3 से तीनों ग्रुप्स में इक्वली बांट देंगे। 84/3 करो। 26. 26. So you can basically distribute 26, 26, 26 into A, B and C. तो अब आपका सबसे पहला टास्क क्या है? Excuse me, ma'am. हाँ जी। मैम ये 28 है, 28 होगा। 26 नहीं है। हाँ 28 है। So what is your first task? You have to find out the total sample size. कितने लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है, तो उन तीनों को प्लस कर दोगे। फिर जो भी आया है उसको आप 3 ग्रुप्स में या 4 ग्रुप्स में, जितने भी ग्रुप्स हैं उसमें इक्वली बांट दोगे। देन यू हैव टू मेक अ टेबल फॉर योरसेल्फ।
वो टेबल आपको ऐसे बनानी है, इसको हम कंटिंजेंसी टेबल बोलते हैं. दिस इज अ कंटिंजेंसी टेबल wherein you have a डेसिमल में, अगर देखो डेसिमल में आ रहा है ना तो एक दो ऊपर नीचे कर सकते हो आप. जैसे अगर ये हमारा 25 पॉइंट समथिंग आता, राइट, तो इंस्टेड ऑफ डूइंग इट इक्वली, मतलब अब तीनों इक्वल हिस्से करने की जगह आप थोड़ा प्लस माइनस कर सकते हो, दैट इज फाइन. जैसे 25, 28, 20 ऐसा भी डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है. ठीक है, मोर और लेस सिमिलर होना चाहिए बस. सो यू हैव ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी ओवर, पहले आप एक्सपेक्टेड लिखते हो, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी. हमने एक्सपेक्ट किया 26, 26, 26 होगा, और ऑब्जर्व हमको गिवन था क्वेश्चन में क्या था, I'm expected 28 हो गया. 28 था. हाँ सॉरी. अब क्वेश्चन में कितना गिवन है, 20, 39, 20, 39 and 25. 35. ठीक है. अब आपकी कंटिंजेंसी टेबल रेडी है. व्हाट यू डू नेक्स्ट, दिस इज कॉल्ड अ कंटिंजेंसी टेबल. अब आप क्या करेंगे, आपको सिंपली काई स्क्वायर निकालना है. काई स्क्वायर इज समेशन, यानी कि जो भी है आपकी, जैसे 3 कैटेगरीज है तो तीनों का आपको दिस विल हैपन फॉर ए बी एंड ए प्लस बी प्लस सी. ठीक है, इसको अपने आप सॉल्व करोगे. Ma'am, a question. यस. Now, can we not switch, the rows and columns like with जैसे हमने यहाँ लिखा है A, B, C. Can we not put them in, on top of it, like instead of expected and observed, or on the left side जहाँ पे A, B लिखा है ना फिर. वैसे भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो. आप रोज और कॉलम्स कहाँ प्लेस कर रहे हो, दैट डज नॉट मैटर मच, बिकॉज आपको उनको इवेंचुअली मल्टीप्लाई करना है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में. इफ यू लुक Because एट योर, eventually जब हम degrees of freedom निकालते हैं, then that would not, that would not impact the end result. एग्जैक्टली, इट विल नॉट. आप इसको ऐसे भी प्लेस कर सकते हो. आई विल शो यू अ क्वेश्चन पेपर इफ आई कैन. आई हैव टू सी, वेट. तो नहीं कर रहा है. आपको क्वेश्चन में जैसे गिवन है ना, आप वैसे ही बनाना. सही, इस क्वेश्चन में हमको कहाँ गिवन था दैट क्वेश्चन, हाँ, अगर इसमें फ्रीक्वेंसी ऐसे कॉलम्स में गिवन है, रोज में गिवन है, तो आप उसको रोज में ही बनाओगे. जिस हिसाब से क्वेश्चन में बना रखा है आप उस हिसाब से बनाओगे फिर. ठीक है, so we'll have to Thank you, turn ma'am. it sideways. तो ये आपका फिर ऐसे बनेगा. Guys, give me a minute, please. Ma'am, you can't do anything about it. What's happening on the chat, just ignore, because this guy might be using different devices and posting it and then exiting. So you don't have an option to remove. Yeah, I was trying to figure it out कि मैं इसको remove क्यों नहीं कर पा रही हूँ. ठीक है, all right. हम कंटिंजेंसी टेबल दोबारा बना लेते हैं एज पर द क्वेश्चन. क्वेश्चन में हमारा A B C ऐसे गिवन था, राइट.
we have expected frequency over here and observed frequencies over here. Expected हमने 28 कैलकुलेट किया था और observed क्या थी 20, I think this was 39, this was 25 और ये 20, क्या था 20. Ma'am, 20. ठीक है. अब यूजिंग दिस फॉर्मूला chi स्क्वायर का फॉर्मूला ये यूज करके ये फॉर्मूला यूज करके मेरे को chi स्क्वायर की वैल्यू बताओ. मैम जो टेबल पहले बनाई थी वो नहीं बनानी फिर? नहीं, क्वेश्चन में अगर आपके रोज में गिवन है वैल्यूज तो आप रोज में ही बनाओगे. अगर क्वेश्चन में कॉलम्स में गिवन है तो कॉलम्स में बनाओगे. मैम 7.72 आ रहा है क्या? 7.72. I haven't calculated yet. So just बाकी लोग कैलकुलेट करके बताओ. किसी का 6.8 आ रहा है. आप लोग पहले स्क्वायर कर रहे हो फिर डिवाइड कर रहे हो, राइट? पहले FO माइनस FE होगा, जो वैल्यू आएगी वो स्क्वायर होगी, फिर उसको डिवाइड करना है FE से, एंड देन you will add all the values for group A, then for group B, then for group C. हमें ये हर ग्रुप के हिसाब से अलग अलग करना होगा या फिर टोटल सम करके करना होगा? क्योंकि सम करके करेंगे तो 0 ही आएगा. हम करके करेंगे तो 0 कैसे आएगा? ऑब्जर्व्ड, एक्सपेक्टेड. देखो, वेट आई विल शो यू. ऐसा क्यों चल रहा है? नहीं, ग्रुप ए का ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी कितना है? 20. 20. That's what I was asking. Thank you. हाँ. ग्रुप बी का कितना था? 39. 39. 39. 39 था ना? So you have 39 minus 28 whole square upon 28 plus 25 minus 28 whole square upon 28. Yes, is all over. Two point two eight. मैम हाँ जी. मैम ये chi स्क्वायर का फाइनल आंसर वर्ड में हो सकता है ना, लाइक 6.8 ऐसा कुछ भी पॉइंट? हाँ, डेसिमल में आ सकता है. ओके. 0.32. 2 डेसिमल प्लेसेस तक लेंगे सब लोग, ठीक है? सिक्स 6.9 आ रहा है आंसर. है actually. 6.9. 6.92 is your answer. यस मैम. सबका यही आ रहा है? यस मैम.
मैं एक बार आपके चैट बॉक्स में देखूं, सब किसी का 7 भी आ रहा है आई थिंक। मैम वो मैंने 11 का स्क्वायर गलत कर दिया था तो। हाँ 6.92 इज द आंसर। 6.8 6.8 6.9 ठीक है, इतना एक दो यूनिट्स का डिजिट्स का फर्क चलेगा। ठीक है देन, ये तो बहुत आसान था, इसमें कुछ नहीं है। अब आपको क्या निकालना है, इसका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम निकालना है। कॉलम -1 इंटू रोज -1। कितनी कॉलम्स है, कितने रोज है? 1 सेकेंड गाइस, 1 सेकेंड। हाँ जी, रोज कितनी है? मैम इसमें मैम ऐसा भी रो था कि 2 हम है एंड सॉरी, बोलो बोलो आंसर दो। कोई आंसर दे रहा था बच्चा। मैम रोज 2 है एंड कॉलम 3 है। हाँ, रोज आर 2। रो भाई एक सेकेंड, तुम लोग 3 रोज कहाँ से काउंट कर रहे हो? रोज होती है आपकी ये मैम वाली। रोज 2 है, हाँ कॉलम 3 है। हाँ, किसी ने टेक्स्ट पे 3 रोज लिखा हुआ है। सो आर इज 2 एंड दीज आर योर कॉलम्स। कॉलम्स आर 3। 2 -1 इंटू 3 -1, आपका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कैसे निकलेगा? डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इज 2, राइट? अरे थक गए हो क्या तुम लोग? यस मैम। यस यस मैम बोल रही है। मैम सॉरी, वो आंसर के लिए बोल रही थी, डिग्री ऑफ अच्छा फ्रीडम 2। ठीक है ओके। सो योर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इज 2। यस अब अगेन हम क्या करेंगे, काई स्क्वायर हम ऑब्टेन्ड हमने निकाल लिया, हमारे पास डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। क्वेश्चन में अल्फा दिया हुआ था 0.05, आई थिंक 0.05 ही था। हाँ, इसमें अच्छा दोनों गिवन है, 0.05 पे भी टेस्ट करो और 0.01 पे भी करो। अ लॉट ऑफ टाइम्स क्वेश्चंस लाइक दिस कैन कम कि आप 0.05 पे भी टेस्ट करोगे, 0.01 पे भी टेस्ट करोगे। हो सकता है 0.05 पे कोई हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाए और हो सकता है 0.01 पे एक्सेप्ट हो जाए, सो दैट इज पॉसिबल। ठीक है, हम 0.05 पे टेस्ट करेंगे और इसमें हाइपोथेसिस बनाने को बोला है टू टेस्ट द नल हाइपोथेसिस ऑफ इक्वल प्रेफरेंस, यानी कि जितने लोग ए को पसंद कर रहे हैं उतने ही लोग बी को भी पसंद करेंगे, उतने ही लोग सी को भी पसंद करेंगे। दिस इज व्हाट द नल हाइपोथेसिस लुक्स लाइक इन अ काई स्क्वायर। समझ आ रहा है सबको? गिव मी अ यस और नो। यस मैम। यस मैम। तो इसमें मैम हाँ जी, 0.05 डिवाइड नहीं जीरो, होगा? मैं बता रही हूँ उसी चीज पे आ रही हूँ। देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि नल हाइपोथेसिस टेस्ट करो। नल हाइपोथेसिस बोल रही है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ पीपल चूजिंग ग्रुप ए विल बी द सेम एज। अब यहाँ पे सेम का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल एग्जैक्ट सेम होगा। सेम मतलब है कि लगभग सिमिलर लोग होंगे। अभी तो 84 का सैंपल साइज इज वेरी स्मॉल। व्हेन वी आर डीलिंग विद ह्यूज सैंपल साइज तो हम कई बार माइन्यूट डिफरेंसेस वी कैन इग्नोर। दैट इज व्हाई वी ऑलवेज यूज द टर्म सिग्निफिकेंट डिफरेंस। इज द डिफरेंस स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट और नॉट? ठीक है, तो नल हाइपोथेसिस बोल रही है कि frequency of people choosing cheese A will be the same as those choosing cheese B and cheese C. ठीक है, अब क्वेश्चन में हमें सिर्फ नल बनाने को बोला है and we have to test it at alpha 0.05, right? But we will still make an alternate hypothesis जहां पे हम बोल रहे हैं कि ये frequency of people choosing A or B or C flavor will not be the same. यहाँ पे
काई स्क्वायर में आप अल्फा कभी भी वो नहीं होता है, डिवाइड बाय 2 नहीं होगा, यू विल नॉट डिवाइड इट बाय 2 इन एनी केस, क्योंकि हम ये नहीं बोल सकते कि ये बेटर है या वो बेटर है, हम बस देख रहे हैं कि कैटेगोरिकली डिफरेंसेस हैं या नहीं, राइट? So this is your first step when you will write down the null hypothesis. This is your second step जब आप chi-square calculate कर रहे होगे. This is your third step जब आप degree of freedom calculate करोगे. ठीक है? And finally, you will see what? You will see chi-square critical. इसकी भी एक टेबल है. वो टेबल I'll show you. Wait. Is the table visible? Not yet, ma'am. No, ma'am. I will share this screen and no. ये तो आप लोग को भी डॉक्यूमेंट ही दिख रहा है ना? Yes, ma'am. I have to share my entire screen. Abhi, is it visible? The table? Yes, Yes. ma'am. Yes, ma'am. इसकी सबसे आसान टेबल है रीड करना. अब डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हमारा क्या निकल के आया था? 5.99 आ जाएगा. डिग्रीज ऑफ फ्रीडम वाज 2. ये रहा आपका 2 और अल्फा लेवल क्या था? 0.05, 5.99. ठीक है, समझ आया? इसकी टेबल रीड करना तो आसान है, इसमें कोई 2-3 आपको कॉलम्स नहीं देखनी है. मैम सिर्फ और एक जो कॉलम, दूसरी अल्फा वैल्यू थी उसका भी निकालना होगा. दूसरी अल्फा वैल्यू मैंने आपको यही समझाया ना कि आप यहाँ पे अल्फा वैल्यू को नहीं डिवाइड करते हो. अभी हम सिर्फ 0.05 पे देख रहे हैं, 0.01 छोड़ दो. ओके. पर क्वेश्चन में आए तो देखना है, जैसे ये होगा 0.01 पे. ठीक है, बट आई थिंक इन ईदर ऑफ द केसेस, दोनों ही केसेस में हमारी हाइपोथेसिस क्या हो रही है? 6.92 है, राइट? देखो, अब ये वही सिचुएशन है जो मैं आपको बता रही थी कि हो सकता है एक में एक्सेप्ट हो जाए, एक में रिजेक्ट हो जाए. पहले हम 0.05 पे हमारी क्या वैल्यू आई थी? 4.99. था. मैम 5.99. 5.99, राइट? अब अगर आप ग्राफ बना के देखो 6.92. वैसे भी देख सकते हो कि आपका जो ऑब्टेन्ड है, chi-square obtained is much larger than chi-square critical. तो जब आपकी ऑब्टेन्ड वैल्यू बड़ी होती है तो हाइपोथेसिस क्या होता है? बताओ. इतने सुबह से हम लोग ये चीज कर रहे हैं. यस, वी रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस. अब अगर हम chi-square critical एट 0.01 देखें तो क्या था? 9.21. 9.21. तो यहाँ पे हमारा chi-square ऑब्टेन छोटा हो गया. अब chi-square critical बड़ा हो गया. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे we are accepting a null hypothesis. तो अब आप ये डिफरेंस देखो
कि यहाँ पे जो हमने टेबल बनाई है 28 और 8, यहाँ पे 8 लोगों का डिफरेंस है, बट ये जो 8 लोगों का डिफरेंस है ये 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल पे वैलिड नहीं हो रहा था, मतलब सिग्निफिकेंट नहीं था, बट 5% पे 1% पे था, राइट? सो इट ऑलवेज डिपेंड्स कि आप कौन सी अल्फा वैल्यूज ले रहे हो, आप कितना कॉन्फिडेंस इंटरवल चूज करते हो, आप 0.05 ले रहे हो या 0.01 ले रहे हो, हाउ मच कॉन्फिडेंट यू आर इन योर रिजल्ट एंड हाउ मच एरर यू आर कंसिडरिंग, वो दोनों ही चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है इन ऑर्डर टू सी वेदर देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एक्सपेक्टेड एंड ऑब्जर्व्ड और नॉट। समझ आया? यस मैम। यस मैम। एनी मैम डाउट? थोड़ा डाउट है। हाँ यस जी, मैम। मैम हाँ, एक एक वैल्यू करके बोलो। डिफरेंट आ गई तो इसमें नल रिजेक्ट होगी या फेल होगी? आप ऐसे ही लिखोगे कि at 0.05 we are rejecting the null hypothesis and at 0.01 we are accepting the null hypothesis, दोनों ही conclusions mention करने, ठीक है? मैम डू वी नीड टू मेक Then दो ग्राफ? एनपीसी ग्राफ बनाने होंगे हमें। आप हाँ, छोटे छोटे ग्राफ बनाने में कितना टाइम लगता है? ग्राफ बहुत कुछ ऐसे फेयर नहीं बनाना है, आप सिंपल सा पेंसिल से बनाना, लेकिन ड्रॉ ऑल योर ग्राफ्स विद पेंसिल। ओके यस, एनी मोर क्वेश्चंस? मैम एक डाउट और है। इसका ग्राफ भी बनवा दो। ग्राफ भी बना देते हैं, ठीक है। और एक और कोई सवाल पूछ रहा है अभी? मैम इस क्वेश्चन में ma'am. जैसे एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हमने निकाली, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी में गिवन थी, क्या ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सपेक्टेड गिवन हो और ऑब्जर्व निकालनी हो? नहीं, ऐसा नहीं आएगा कभी। मतलब आपको एक बार को एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज नहीं दी होंगी, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज हमेशा दी होती हैं। ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी का मतलब ही ये है कि आपने स्टडी कंडक्ट कर ली है एंड यू हैव योर रिजल्ट्स विद यू, राइट? तो वो रिजल्ट्स आपके पास हमेशा होंगे, ठीक है? सो दिस वाज वन सिनेरियो वेयरइन यू यूज काई स्क्वायर, जहां पे आपको ऑब्जर्व वर्सेस एक्सपेक्टेड में डिफरेंस देखना है। The other scenario is a 2x2 type of a situation. Very similar. I'll again share my screen. इसके लिए मैंने आपके टीम्स ग्रुप पे एक लिंक शेयर की है, ठीक है? Yes, गार्गी। मैम इफ इन एनी रेयर केस हमारी जो ऑब्टेन वैल्यू है और क्रिटिकल वैल्यू है वो सेम आ जाती है, तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे या एक्सेप्ट करेंगे? अगर हमारी ऑब्जर्व्ड और अगर हमारी ऑब्टेन्ड एंड क्रिटिकल वैल्यू सेम आ जाती है? ऐसा वैसे कभी होगा नहीं, बट अगर होता है तो आप, ये तभी पॉसिबल है जब हाइपोथेटिकल कोई सिचुएशन हो। इन योर क्वेश्चंस आई डोंट थिंक ये लोग ऐसा ट्रिकी क्वेश्चन देंगे कि दोनों सेम है तो क्या करोगे। अगर सेम है तो जस्ट राइट इट, क्रिटिकल वैल्यू ये है, ऑब्टेन वैल्यू ये है, दैट इज इट। डोंट हैव एनी कंक्लूजन टू ड्रॉ, बस, ठीक है? ओके मैम। I'll share my screen and I'll show you another case जहां पे आप अपना वो यूज कर सकते हो काई स्क्वायर। मैंने आप लोग के साथ एक लिंक भी शेयर की है। हेलो। Is the screen visible? यस मैम। ये देखो, 5 ये बजे आप जाओ, सब्जी नहीं तो तुम जाओ, मैं मान रही हूँ मेरी खत्म हो जाएगी, मुझे खोलने वाली है खत्म। भाई किसी का माइक ऑन है, प्लीज ऑफ कर लो, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। अनुष्का माइक ऑफ। राइट, सो
दिस इज अनदर केस, फॉर्मूला सेम ही लगेगा, सब कुछ सेम होगा, हाइपोथेसिस टेस्टिंग भी वैसे ही होगी, जस्ट दैट हियर इंस्टेड ऑफ 1 by 1 सिचुएशन जो भी हमने डिस्कस किया था कि ए चीज या बी चीज या सी चीज ये एक वेरिएबल है, यहाँ पे इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हमारे एक से ज्यादा वेरिएबल्स हो जाएंगे। So now we are stepping into a 2 into 2 contingency chi-square wherein we have two variables. To give you an example, ये देखो, males, how many males are overweight, how many females are overweight, how many males are in normal category, how many females are in normal category. यहाँ पे भी आप chi-square लगा सकते हो जब आपको दो ग्रुप्स में डिफरेंसेस देखने हैं कि किसी का ओवरवेट होना क्या उसके जेंडर पे डिपेंड करता है या नहीं, राइट? सो दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन आल्सो बी देयर। यहाँ पे भी आप सेम सिनेरियो फॉलो करोगे, you will have your you will design your contingency table। आपको हो सकता है क्वेश्चन में दिया हो कि there are 200 males out of which 50 are overweight, नॉर्मल वेट वाले आपको खुद निकालने पड़ेंगे, तो आप सिंपली 200 माइनस 50 करोगे तो आपका ये कॉलम फिल हो जाएगा, ठीक है? सो यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट विद व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग। क्वेश्चन में कई बार आपको सिर्फ एक वैल्यू दी होगी, दूसरी आपको खुद निकालनी है, तो आप निकाल सकते हो, ठीक है? सो इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। यहाँ पे भी इफ यू सी दे हैव गिवन यू expected frequencies are not given, only the observed frequencies are given कि out of 450 people 200 were males, 250 were females। मेल्स में भी इतने लोग ओवरवेट थे, इतने लोग नॉर्मल वेट के थे, तो ये हमने देख लिया है, डेटा कलेक्ट कर लिया है, फील्ड वर्क हो चुका है, उसके बाद हमारे पास ये डेटा आया है। So these are your observed values. You will now have to find out a expected value. तो एक्सपेक्टेड वैल्यूज को एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज निकालने के लिए आप ये फॉर्मूला यूज करोगे, मल्टीप्लाई द कॉरेस्पॉन्डिंग रो विद द अप्रोप्रिएट कॉलम डिवाइडेड बाय ग्रैंड टोटल। यानी कि अगर मुझे इसका रो 1 का एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालना है, व्हाट आई विल डू इज रो 1 का टोटल इनटू कॉलम 1 का टोटल डिवाइडेड बाय द ग्रैंड टोटल, ठीक है? ये फॉर्मूला आप लोग कहीं लिख लो। Whenever there is a 2 into 2 kind of a situation, this is how you find out the expected frequencies. मैम रो 1 का टोटल इनटू कॉलम 1 का टोटल डिवाइडेड बाय ग्रैंड टोटल। Yes, I'll show you here. Screen दिख रही है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So the other scenario, which is situation, स्क्रीन नहीं दिख रही। मैं जो स्क्रीन पे लिख रही हूँ आपको दिख रहा है? नो मैम। Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. जिसको नहीं दिख रहा है, I think वो probably इंटरनेट इश्यूज हैं, because majority of the class को दिख रहा है। तो पहला सिचुएशन था जहां पे आपने सिर्फ ऑब्जर्व वर्सेस फ्रीक्वेंसी, ऑब्जर्व वर्सेस एक्सपेक्टेड देखा। इस सिचुएशन में हम देख रहे हैं 2 into 2 कंटिंजेंसी, जब आपके दो वेरिएबल्स आ गए। सारी चीजें सेम होंगी, सब कुछ सेम होगा। द ओनली डिफरेंस इज फॉर कैलकुलेटिंग एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, मान लो आपको रो 1 की निकालनी है, ठीक है? तो आप क्या करोगे, रो का टोटल स्कोर इनटू कॉलम का टोटल स्कोर डिवाइडेड बाय ग्रैंड टोटल, ठीक है? सिमिलरली फॉर रो 2 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। बस ये डिफरेंस है पहले सिनेरियो में और दूसरे सिनेरियो में, बाकी आप वैसे ही फॉलो करोगे, फॉर्मूला सेम ही रहेगा। chi square obtained will still be f o minus f e
होल स्क्वायर अपॉन एफ ई। हर एक रो हर एक कॉलम के लिए ये यूज होगा, फिर सबको प्लस करना है. So rest of the steps are same, just how you are finding out the expected frequency that is different. ठीक है, एक बार आप लोग जो मैंने आपको लिंक भेजी है आपके ग्रुप्स में, वो लिंक एक बार खोल के जरूर देखना. मैम ये हाँ. ग्रुप एक्सेस कैसे करेंगे? कहाँ भेजा है? मैं ये दोबारा भेज देती हूँ चैट बॉक्स में. टीम्स पर है. टीम्स ग्रुप पे है वैसे. ठीक है, द रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल बी द सेम. अब देखो इन्होंने बहुत स्मार्टली यहीं पे सारी चीजें कैलकुलेट कर ली. यहाँ पे इन्होंने ऑब्जर्व्ड एक्सपेक्टेड लिखा, सब्ट्रैक्ट किया, ओ माइनस ई का स्क्वायर किया, फिर उसको डिवाइड बाय ई कर दिया और फिर लास्ट में सम कर दिया 25.07. सो या अगर आपको क्लैरिटी चाहिए अपने आंसर में, सो आप टेबल बना के भी कर सकते हो या फिर मैनुअली भी कर सकते हो, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले करके देखा. हर्षदीप, यू हैव अ क्वेश्चन? I'll try to unmute him if I can. आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हो. रो टोटल इंटू कॉलम टोटल अपॉन ग्रैंड टोटल, अपॉन ग्रैंड टोटल. ठीक है, अगर यही क्वेश्चन था और आपको आंसर मिल गया, देन प्लीज गिव मी अ थम्स अप. ये समझ ही नहीं आया. अच्छा ठीक है, इधर देखो, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, दीज आर योर एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी. अब आपको ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज हैं, आपको एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी भी चाहिए. एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी के लिए आप क्या करोगे? 50, आपको मान लो मेल्स का एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालना है. व्हाट दे हैव डन इज, my laptop is hanging. Give me a minute, class. I think there are some network issues from my end. तो हम आपको बता रहे थे कि एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी जब नहीं गिवन है तो आप कैसे निकालेंगे. इसका बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है. I'll share my screen again. Wait. इसका चाहे तो आप लोग स्क्रीन, वैसे मैंने ग्रुप पे शेयर किया हुआ है, बट स्टिल इफ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट. ये देखो,
हर एक सेल के लिए आपको एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी अलग से निकालनी पड़ेगी. So you simply multiply the corresponding row total with the appropriate column total and then divide by grand total. ठीक है. अगर आपको इस पर्टिकुलर रो के लिए, इस पर्टिकुलर सेल के लिए अगर आपको एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालनी है, रो का टोटल इनटू कॉलम का टोटल डिवाइडेड बाय ग्रैंड टोटल. दिस यू हैव टू डू फॉर ईच ऑफ द सेल्स. ठीक है. इसके अलावा काई स्क्वायर में और कुछ नहीं है जो बहुत डिफिकल्ट हो या जो समझ ना आए. मैंने आपके चैट बॉक्स में 3 टर्म्स लिखे हैं: assumptions of chi-square, applications of chi-square and goodness of fit test. इन तीनों को आप लोग SLM से कवर कर लेना. हमने क्लास में भी ऑलरेडी किया है काफी बार एंड वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम अगेन बिकॉज ये क्लास सिर्फ 1 घंटे की होनी थी. सो गो थ्रू योर मटेरियल, योर लर्निंग मटेरियल. उसके अलावा न्यूमेरिकल हम लोग सारे ही कर चुके हैं. वी हैव डन टी इंडिपेंडेंट, टी डिपेंडेंट. We have done ANOVA also, and we have done both the cases for chi-square. And So now question it's papers? question paper I'll share. Can I? ठीक है, मैं आपको Teams पे ही भेजती हूँ. ठीक है. Wait, I'll see if I can do it right now. You can share it. We'll take a snapshot or maybe photo from our phone. I think that will be better because ये closed access में है ये. I think it's a paid thing. एक ही क्वेश्चन पेपर है. Is it visible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये सब तो बेकार है. यहाँ से you can take a snapshot. और wait, I'll try if I can send the PDF also. I think PDF भेजना ज़्यादा सेंस बनाता है rather than sharing the screen, rather than you guys clicking the screenshot. Okay, ma'am. I'll share this file with you. ठीक है. देखो सारे ही क्वेश्चंस वही है जो भी हमने किए हैं. यहाँ पे भी इसमें 0.5, 0.05, 0.01 दोनों पे टेस्ट करना है. और यहाँ पे आपको ज्यादा कुछ कैलकुलेट भी नहीं करना है. इन्होंने मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन दे रखा है. ठीक है. अनोवा देखो, अनोवा में अगेन 3 ग्रुप्स हैं लेकिन कैलकुलेशंस मुश्किल नहीं है क्योंकि सिंगल डिजिट के क्वेश्चंस हैं. ये काई स्क्वायर का क्वेश्चन है जो भी हमने डिस्कस किया. ये भी काई स्क्वायर का क्वेश्चन है. थ्योरी में क्वेश्चंस देखो, अजम्पशंस पूछे गए हैं. व्हेन डू यू एक्सेप्ट और रिजेक्ट? एक्सेप्ट की जगह इन्होंने रिटेन टर्म यूज किया है. डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या है, स्टैंडर्ड एरर क्या है. ठीक है. ये सब टर्म्स हमने आज डिस्कस किए हैं और आपके SLM में भी मेंशन्ड है. So I think you guys, we have already covered a lot of content, keeping in mind कि हम ऑनलाइन क्लास ही ले रहे हैं, बट आज हमने काफी कुछ कवर कर लिया है. I would request you all to start reading your SLMs, start solving questions because numericals scoring होते हैं. ठीक है. Numericals are very scoring. बस मीन सही निकालोगे तो सारी चीजें आपकी सही निकल आएंगी आगे. Be aware of where you are putting your decimal. साइंस का ध्यान रखना. स्क्वायर करोगे तो साइन हट जाएगा, दैट इज नॉट द प्रॉब्लम. बट जब आप सम करते हो तो प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस 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 होता है, माइनस माइनस प्लस होता है. ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो मैंने देखा है क्लासरूम में आप लोग बहुत बहुत मिस्टेक्स करते हो इन चीजों में. ठीक है. सो टू ट्राई अवॉइड डूइंग दीज मिस्टेक्स. ऑल राइट. इफ यू हैव एनी मोर डाउट्स then please ask, else and I will then wrap up the lecture. Shashank is clapping. Why? Oh, so we are. अच्छा तुम लोग खुश हो रहे हो कि क्लास खत्म हो गई है.
think, wait. Some of you might have some questions, but I think I've disabled your mic. Yes, you can unmute. If you have any questions or if you want to share anything, you can unmute yourself and then ask. Just thanking, Ma'am, ma'am. can you please Thank you please guys. tell me जो भी आपने question दिखाया उसमें लिखा था 90% confidence interval, उसका मतलब क्या होता है? 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल। ओ ठीक है, वेट। सो कॉन्फिडेंस इंटरवल्स आप मैनुअली भी निकाल सकते हो। This is something that we have skipped. Wait, I again share my screen. Confidence intervals are basically your regions of cutoff, ठीक है? तो अगर आप टी टेस्ट निकाल रहे हो तो आपको अल्फा लेवल पता होना चाहिए, ऑब्वियसली आपको मीन पता होना चाहिए। कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालने का एक फॉर्मूला होता है, इसको आप लोग लिख लो, मैं आपको डिक्टेट कर रही हूँ। प्लीज राइट डाउन दिस फॉर्मूला if in case they ask. So when you want to find out the confidence interval, रॉ स्कोर होता है, एक आपका रॉ स्कोर होता है, राइट, जो आपका स्कोर है जो आपको क्वेश्चन में गिवन है। सो फॉर कॉन्फिडेंस इंटरवल यू एड योर सैंपल मीन, आप मीन ऐड करते हो अपने स्टैंडर्ड डिविएशन के साथ। I think I'll share the screenshot only, yaar. It's getting very hectic for me as well. Wait. मैं आप लोगों के साथ एक स्क्रीनशॉट शेयर कर रही हूँ। Chat is turned off for this meeting. I'll put it on the Teams group then. कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालने का वैसे नहीं आएगा, ये पुराने क्वेश्चन पेपर होगा, बट आई स्टिल लेट यू नो। देखो, एक आपके ग्रुप पे भेजा है, हैव अ लुक। एक्स बार आप सैंपल मीन है जो गिवन होगा, कॉन्फिडेंस लेवल वैल्यू भी गिवन होगी, ठीक है? इफ नॉट देन कॉन्फिडेंस लेवल वैल्यू इज योर क्रिटिकल वैल्यू, ठीक है? जो आप टेबल से देखते हो वो वाली वैल्यू है ये। स्टैंडर्ड डिविएशन गिवन होगा, सैंपल साइज गिवन होगा। नाउ यूजिंग दिस फॉर्मूला यू कैन फाइंड आउट कॉन्फिडेंस इंटरवल। यहाँ प्लस माइनस का मतलब ये है कि एक अपर लिमिट होगी, एक लोअर लिमिट होगी, तो इसको प्लस माइनस मत लिख के आना, इसको प्लस करके एक अलग वैल्यू निकलेगी, सेम फॉर्मूले में माइनस करके अलग वैल्यू निकलेगी, उन दोनों वैल्यूज के बीच में दैट इज योर कॉन्फिडेंस इंटरवल। इंटरवल का मतलब ही यही है कि अपर और लोअर लिमिट के बीच में कुछ होगा, ठीक है? Any more questions or doubts? Manya, you are raising your hand. Yes, you may ask. I think you are still शायद mic off कर दिया. You can write it in the chat box. Arthana is also asking. मैंने माइक्स अलाउ किए हैं, पूछो। कॉन्फिडेंस डबल वाला टॉपिक छोड़ दो, मान्य, लेट इट गो। अब जितना अगर ओके मैम, 90% किया है, 90% अच्छे से करो। ओके मैम। ग्रैंड टोटल वाला समझ नहीं आया, हर्षदीप, आई हैव शेयर्ड द लिंक, प्लीज गो थ्रू इट। मैं बहुत बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, आई एम वेरी टायर्ड नाउ। प्लीज गो थ्रू द लिंक एंड आस्क योर क्लासमेट्स, ठीक है? तुम लोग थके नहीं हो क्या? What kind of questions will be there in practical viva? Okay, so for your practical, you will have 10 MCQs, right? And you will have a 20 marker question.
The 20 marker question will be a numerical जिसमें आपको हाइपोथेसिस बनानी होगी, हाइपोथेसिस टेस्ट करना होगा। अगर टी का क्वेश्चन है तो टी ऑब्टेन टी क्रिटिकल निकाल के लाओगे, अनोवा है तो एफ क्रिटिकल एफ ऑब्टेन निकालोगे, and you will plot it. So 20 marker question will be completely numerical based. For your MCQs, I can ask questions on types of hypothesis, errors in hypothesis testing, standard error क्या होता है। मैं कोई एक केस लिखूंगी, उस केस से आपको डिकोड करना है कि इसमें कौन सी हाइपोथेसिस बनेगी। I can ask you questions about what are alpha values, अनोवा का थोड़ा बहुत 1 वे अनोवा 2 वे क्या होता है ये पूछ लेंगे। आज की क्लास में जो कुछ भी हुआ है ना, आई कैन आस्क एनीथिंग ऑफ इट जस्ट इन अ 1 मार्कर फॉर्मेट, ठीक है। What is the Teams group? Kashish, you are attending a lecture at your Teams platform. This is a Microsoft Teams app that we have. And हम यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं। आप इस ग्रुप में हो, दैट इज व्हाई यू आर एबल टू जॉइन दिस क्लास, ठीक है। तो ग्रुप में अपडेट्स देखते रहना। मैम हम थक गए स्टैट्स पढ़ते पढ़ते, हाँ प्लीज जाओ यार, फिर थक गए तो प्लीज। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, डू वेल, रीड द क्वेश्चंस वेरी केयरफुली। कई बार अगर ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन ट्रिकी है तो कुछ भी मत करके आना, leave that question, move to the next question. Once you are done with all the questions, come back to that question again. ठीक है, सब कुछ आप लोगों ने पढ़ा है, आपको सब कुछ आता है, कुछ चीजें ओवरलैपिंग लग सकती हैं बट दैट इज फाइन। ठंडे दिमाग से सोचना एंड डू नॉट स्पेंड मोर देन 10 to 12 मिनट्स पर न्यूमेरिकल। एक न्यूमेरिकल पे आप मैक्सिमम 15 मिनट दे सकते हो, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। टेबल्स ठीक से पढ़ना, नल हाइपोथेसिस हमेशा बनेगी, ऑल्टरनेट में टू टेल्ड बनेगी इन 90% ऑफ द सिचुएशंस। क्रिटिकल वैल्यूज ठीक से देखना, टू टेल्ड बना रहे हो हाइपोथेसिस तो अल्फा वैल्यू हमेशा डिवाइड बाय 2 होगी, ठीक है। एंड ऑल द बेस्ट। इससे ज्यादा मेरे पास कुछ नहीं है तुम लोग को बताने के लिए। मैम यस मैम क्वेश्चन के अंदर ये मेंशन होगा कि मतलब किस टाइप का समय, लाइक टी टेस्ट है, काई स्क्वायर, या फिर ऐसा मतलब कुछ मेंशन होगा, या फिर हमको खुद फाइंड आउट करना पड़ेगा? अरे बहन, ये तो तुमको अब खुद पता होना चाहिए ना। जब आप दो ग्रुप्स में डिफरेंस देख रहे हो, इट्स अ टी टेस्ट। इफ इट इज मोर देन 2 ग्रुप्स, इट्स अनोवा। If it is a male female kind of a situation or A or B kind of a situation, it's chi-square. क्वेश्चन में वैसे तो गिवन होगा, बट नहीं भी गिवन है तो आप लोग क्वेश्चन देख के इतना डिसाइफर कर सकते हो, मतलब खुद